Hello friends, welcome to my channel Science Learner. Today I brought some important question from HAP Human Anatomy and Physiology. So many students they were asking about the notes, so some I got. So just I am showing you the at least this much. If you write, you can score a good marks. And these are the questions which are always have been asked in previous question paper. So these are the important questions. So let's check what are the questions. First question is, write the composition and function of the saliva. So answer is salivary glands. There are three pairs of the salivary glands in the oral cavity. They are the parotid gland, submandibular gland, and sublingual glands. Next is composition of the saliva. Daily secretion is around 1500 ml per day. It is a mixed secretion of all the three pairs of the salivary glands. It is an alkaline fluid containing water to an extent of 99% the solid contents of saliva. So what are the mixture of this saliva? Here given mucin, which is a glycoprotein. Second is ptyalin, an enzyme which converts starch into the maltose, and also it contains a salt of the sodium, potassium, calcium and magnesium. So for 1 marks also and for 2 marks also it may be asked कि saliva का composition क्या क्या है. तो you have to write कि इसमें म्यूसिन होता है, टाइलिन एक एंजाइम होता है, और साथ में ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये एलिमेंट्स भी मिलते हैं इसमें. सो टाइलिन एंजाइम ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइलिन एंजाइम? इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज. नाउ फंक्शन ऑफ स्लाइवा. स्लाइवा का काम क्या है? सो इट कन्वर्ट्स अ cooked starch into a soluble sugar called the maltose. ये क्या करता है? सॉल्युबल शुगर को माल्टोज में चेंज करता है. इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर अ फूड, हेल्प्स इन द सॉलोइंग. ये हम जो भी खाना खाते हैं उसके लिए ये सॉल्वेंट का लिक्विड का काम करता है, और हमारे स्वेलिंग में यानी कि निगलने में भी काम आता है. देन इट मॉइस्टन, लुब्रिकेट एंड क्लीन द माउथ. ये हमारे माउथ को मॉइस्टन भी कच्चा भी रखता है, लुब्रिकेट भी करता है एंड क्लीन भी करता है. It excretes the organic and inorganic substances and some drugs. Saliva का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी है जो एक्ट एज अ वेस्ट मटेरियल, उसको भी हमारे बॉडी से निकालता है. Now second question is, describe the structure and function of stomach. Stomach का structure क्या है और function बताना है. So stomach, it is a delicate portion of the alimentary canal and it receives the food from the esophagus. It lies in the upper part of the abdominal cavity below the left half of the diaphragm. तो इसका पोजीशन क्या है? ये डायफ्राम एंड एब्डोमेन कैविटी में ये रहता है. और इसका काम क्या है स्टमक का? तो इट इज अ डायलेट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का ये पोर्शन है जिसमें कि खाना इसोफिगस के बाद आता है और वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है. पार्ट्स ऑफ स्टमक इज, सी हियर, two surfaces, an interior and posterior surfaces, two borders, the upper border called the lesser curvature and lower border called the greater curvature, fundus, body, pyloric antrum, the lower part, function of the lower part. ये पाइलोरिक एंट्रम मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा वॉल्व है जो कि ये स्टमक के माउथ पे रहता है. सो नाउ द फंक्शन ऑफ द स्टमक. स्टमक का काम क्या है? टेम्पोररी स्टोर्स द फूड. द गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द केमिकल डाइजेशन. स्टमक में हमारा खाना थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है और उसी में गैस्ट्रिक जूस मिलता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस एक तरह का केमिकल डाइजेस्टर है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है. फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, एंड इसमें विटामिन B12 भी है. इसका जो स्टमक में जो ये रहता है पीएच है वो एसिडिक है, और एसिडिक होने की वजह से ये बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों को भी ये या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे लिए खतरनाक है उसको ये किल करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस. बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पैनक्रेटिक जूस का कंपोजिशन बताओ और फंक्शन बताओ. 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है.
So function of pancreas, the function of the pancreas are of two types, exocrine function and endocrine function. जो pancreas है वो दोनों तरह से काम करता है, endocrine gland भी काम करता है और exocrine भी करता है. किस तरह से करता है, let's check here. Exocrine function, pancreas secretes the pancreatic juice. जो pancreas है वहीं से pancreatic juice निकलता है और इसका काम क्या है, तो ये pancreatic juice में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका composition. पैनक्रियाटिक जूस में लिपेज रहता है विच कन्वर्ट्स द फैट इनटू द फैटी एसिड. जो पैनक्रियास से जो जूस निकलता है उसका काम क्या होता है, तो जो भी हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं उसको फैटी एसिड में ये और ग्लिसरॉल में ये चेंज कर देता है. कौन, ये इंजाइम लिपेज. और एक और तरह का इंजाइम रहता है अमाइलेज, जो कि क्या कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. फिर एक ट्रिप्सिन है जो कि पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में चेंज करता है. तो यहाँ देखा जाए तो तीन तरह के एंजाइम्स है, लिपेज है, अमाइलेज है एंड ट्रिप्सिन है ना. एंडोक्राइन फंक्शन कैसा होता है और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क होता है, तो एक्सोक्राइन में डक्ट होता है जबकि एंडोक्राइन में जो भी जूस निकल रहा है या हार्मोन्स निकल रहा है सीधे वो ब्लड में चला जाता है, उसमें कोई पैनक्रियास मतलब जो ग्लैंड से डक्ट में नहीं जाएगा, सीधे वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा. Pancreas secretes two different hormones which are responsible for maintaining the blood glucose level. First is glucagon and second is insulin. तो ये एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, तो एंडोक्राइन में है कि ये दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है पेनक्रियास, एक ग्लूकागॉन और एक इंसुलिन. ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स वेयर एज इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स सिक्रेट करता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फिजियोलॉजी बताना है. इट इज अबाउट 5 to 7 meters long. इट कंटेन्स द थ्री रीजन, नेमली first is duodenum, second is jejunum and third is ileum. Small intestine consists of same four coats which are present in the stomach. They are the peritoneal coat, muscular coat, submucous coat and mucous coat. The mucous coat contains villi. This is very important. What are villi? Mostly पूछा जाता है. Which absorbs the carbohydrate, protein and fat. तो जो ये इंटेस्टाइन में जो विलाई है इसका काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को. विलाई आर द माइन्यूट प्रोजेक्शन. अगर डेफिनेशन आ गया व्हाट आर द विलाईज, तो विलाई आर द माइन्यूट प्रोजेक्शन विच प्रेजेंट इन द इनर म्यूकस कोट ऑफ द इंटेस्टाइन. ये विलाई जो है ये एक तरह से क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि लाइनिंग्स होते हैं, ब्रश के जैसा बोल सकते हैं. ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है और इसी की वजह से ज़्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो पाता है और ब्लड स्ट्रीम में जा पाता है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग एंजाइम. अब इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स है जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में. कौन कौन से एंजाइम है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, किसी में भी, न्यू सिलेबस वालों बच्चों के लिए. सो सी हियर, फर्स्ट इज एंट्रोकाइनेस which converts trypsinogen of the pancreatic juice into the trypsin. यानी ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम, तो एंड्रोकाइनेज. इरेप्सिन which converts the polypeptide into the amino acid. एंड थर्ड इज सुक्रेज, माल्टेज या लैक्टेज, जिसके पीछे भी ए एस सी आ रहा है. दीज आर द एंजाइम्स which converts the corresponding disaccharides into the monosaccharides. अभी ये जो एंजाइम्स है, सिक्रेज ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है, माल्टेज माल्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को. ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं और बीच बीच में 1 मार्क्स में के भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं. The mucous membrane of the stomach contain the gland which secretes the gastric juice. बहुत बार आया क्वेश्चन ये गैस्ट्रिक जूस का. तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन रहता है. इट इज़ एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड. और ये जो एंजाइम है जो स्टमक में जो ग्लैंड है उसी से ये रिलीज होता है. Present in the fundus and the body of the stomach in the presence of the hydrochloric acid, pepsin converts protein into the peptone. तो इसका पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में रहता है उसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में. रेनिन, रेनिन भी एक तरह का एंजाइम है which curdles milk. It involves the conversion of the casinogen, the soluble protein of the milk, into the insoluble
कैसिन। तो रेनिन का काम क्या हो गया, तो ये कडल मिल्क ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि सॉल्युबल प्रोटीन जो रहता है मिल्क का उसको इनसॉल्युबल केसिन में कन्वर्ट करता है। ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, इसका काम क्या है, इट इज सिक्रेटेड बाय द पेरिटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट्स concentration is about 0.4 परसेंटेज इन द गैस्ट्रिक जूस। और इसका फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्लाइवा, एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड, फूड को एसिडिफाई करता है, हेल्प इन द एक्शन ऑफ द पेप्सिन, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में काम कर पाता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और ये एक तरह का एंटीसेप्टिक एक्शन भी दिखाता है बाय किलिंग द बैक्टीरिया। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो हम जो भी खाना खाएंगे अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, तो वो किल नहीं होंगे और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो किल हो जाते हैं। नाउ इंट्रिंसिक फैक्टर, it is a content of the gastric juice which is necessary for the absorption of the vitamin B12. गैस्ट्रिक जूस की वजह से B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है। द विटामिन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल। और इस विटामिन का कहाँ जरूरत पड़ता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में विटामिन B12 का काम, मतलब इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज काइम, इट इज अ product of the digested food in the stomach. It is a semi solid form and it passes into the duodenum. जो एक कायम है ये क्या है, एक तरह का जब खाना स्टमक में 1-2 घंटे के लिए रहता है उसके बाद उसकी बहुत चर्निंग होती है और वो इंजाइम गैस्ट्रिक जूस ये सबसे मिक्स हो जाता है, तो अब वो बन जाता है काइम। और इसी को डाइजेस्टेड फूड, ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है, ये सेमी सॉलिड रहता है और ये अब स्टमक से डिओडिनम में जाता है। So next question is, write a note on the joint disorder. Joint disorder के बारे में लिखना है। Joint disorder is termed as the arthropathy and when involve the inflammation of one or more joints, the disorder is called the arthritis. तो ये joints disorder क्या होता है, अगर joints में swelling आ गया, पेन है, तो इसको क्या बोलते हैं, arthritis बोलते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जितना पूछा गया है स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। Arthritis is the leading cause of the disability in the people over the age of the 55. There are many different forms the arthritis, बहुत तरह के arthritis होते हैं, जैसे osteoarthritis हो गया, rheumatoid arthritis हो गया। अब osteoarthritis क्या होता है, तो it is a disease occurring due to the degenerative changes in the cartilage of the joints. joints में जो cartilage होता है उनका deformation होना शुरू हो जाता है, thinner होना शुरू हो जाता है। सो द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द बोन कम इनटू द कांटेक्ट विद ईच अदर। और इसके वजह से जब कार्टिलेज थिनर हो जाता है, कार्टिलेज रहता ही नहीं है वहाँ पे, ग्रीस वगैरह चीज़ें वहाँ रहती नहीं है, तो अब बोन बोन से फ्रिक्शन होना शुरू, घसना शुरू होता है और उसी की वजह से स्वेलिंग एंड पेन होता है। लेटर द बोन स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, द प्रोड्यूस्ड पेन, स्टिफनेस एंड डिक्रीज इन द मूवमेंट। धीरे धीरे क्या होता है, मूवमेंट में कमी आ जाती है पेन की वजह से या स्टिफनेस की वजह से। फिजियोथेरेपी एंड द रिडक्शन इन द बॉडी वेट आर एडवाइज इन दिस कंडीशन। फिजियोथेरेपी करने के लिए बोला जाता है या फिर वेट लॉस करने के लिए बोला जाता है। और कहीं कहीं पे स्टेरॉइड भी बेनिफिशियल होता है। स्टेरॉइडल जो मेडिसिन दिया जाता है उससे भी थोड़ा बहुत रिलीफ देखा गया है। नेक्स्ट इज रूमेटाइड एरिथ्राइटिस क्या होता है, जिसको आर ए भी बोलते हैं, इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है वो हमारे खिलाफ, हमारे बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। दैट काउजेज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है। द जॉइंट्स इन्फ्लामेशन ऑफ द रूमेटाइड एरिथ्राइटिस कॉजेज, अब उस इन्फ्लामेशन की वजह से, उस स्वेलिंग की वजह से, सूजन की वजह से पेन होना, स्टिफनेस होना, रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स होना, ये सब शुरू हो जाता है। और ये मोस्टली जॉइंट्स में होता है जो कि हैंड्स एंड फीट में होता है। अब इसी का एक और कैटेगरी है जिसको गॉट भी बोलते हैं। इट इज काउज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सोडियम यूरिएट। ये गॉट में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम यूरिएट क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स के पास। इट ऑकर्स इन द पीपल विद द हाई यूरिक एसिड लेवल। और ये उन पीपल को, उन लोगों को होता है जिनमें यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन और द डिक्रीज एक्सक्रीशन बाय द किडनी। और ये दो वजह से हो सकता है, या तो किडनी सही काम नहीं कर रहा है, यानी यूरिक एसिड पास आउट नहीं कर रहा है, या फिर ओवर प्रोडक्शन, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है।
Now next is seventh question is draw a neat label diagram of the kidney. सो किडनी के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है. किडनी देर आर ए पेयर ऑफ द बीन शेप. ये थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ेगा कि किडनी क्या होता है. बीन शेप होता है, डार्क रेड कलर्ड किडनी होता है. वंस वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में आता है. द राइट किडनी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी. ईच किडनी मेजर्स 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस. यानी कि आप सोच सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर लेंथ में होता है. ठीक है. ईच किडनी वेट अबाउट 150 ग्राम्स. अब ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देना है. क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड में आएगा. और ये डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए. ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है. तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी है. रेनल कैप्सूल इसको बोलते हैं, इसको रेनल मेडुला बोलते हैं. इस एरिया को रेनल आर्टरी है, ये ब्लू वाला रेनल वेन है. फिर रेनल पेल्विस, ये बैकग्राउंड जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है उसमें. देन ये एक पाइप है जिसको यूरिटर बोलेंगे. यहाँ पे देख लेते हैं, ये बीच का ये जो एरिया है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. देन रेनल पिरामिड, ये अंदर वाले एरिया को रेनल पिरामिड. माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल कॉलम एंड रेनल पेपिला. Structure of kidney. Kidney is surrounded by the outer fibrous capsule. Below the capsule there are the substances of the kidney which consist of. इसमें एक outer cortex होता है, एक inner medulla होता है, और the upper expanded end of the ureter called the pelvis बोला जाता है. फंक्शन ऑफ किडनी बहुत बार पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में. बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी का फंक्शन. तो सबसे ज़्यादा किडनी का फंक्शन क्या देखा जा रहा है, ये एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो हमारे जो बॉडी का जो ब्लड है वो किडनी में जाता है और किडनी में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे ब्लड में पाया जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है हमारे ब्लड में, वो किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करता है. एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेस साल्ट, अगर एक्सेस साल्ट भी हमारे बॉडी में है तो किडनी उसको रिमूव करेगा, उसको एक्सक्रीट आउट करेगा. या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है, ड्रग है, टॉक्सिन है, वो भी क्या किडनी का ही फंक्शन है, वो हमारी बॉडी से रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, और ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है. ना 8th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा. डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म इसमें दो होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन जिसमें हम सांस बाहर छोड़ते हैं. इंस्पायरेशन, इसको ब्रीथिंग इन भी बोलते हैं. इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स. इसमें कौन कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द विच इनलार्जेस द चेस्ट कैविटी वर्टिकली, और जिसकी वजह से ये कैविटी जो है हमारा चेस्ट कैविटी है वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है. देन इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस द एलिवेशन ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम. दिस इनलार्जेस द चेस्ट कैविटी. तो इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी बड़ा होता है. किसके वजह से बड़ा होता है, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है. और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एंड हेयर द लंग्स एक्सपेंड्स एट दिस स्टेज एंड फिल दिस इंक्रीज स्पेस. Now the pressure in the lungs is lesser than the atmospheric pressure, so the air flows into the lungs. और वही उसका अपोजिट किस में होता है, एक्सपायरेशन में होता है, जिसको ब्रीथिंग आउट भी बोला जाता है. इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम. वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे सब रिलैक्स होगा. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, दिस प्रोड्यूसेस द रिडक्शन इन द size of the chest cavity, so the pressure in the lungs increases, which forces the air out. Now 9th question is, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं. इसलिए जो न्यू सिलेबस है या जो ओल्ड सिलेबस वाले भी बच्चे हैं उनको यही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीटेड पूछा जाएगा, क्योंकि एचपी में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है. नाउ 9th क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर. बहुत बार पूछा गया लीवर का फंक्शन. अब ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी, 1 मार्क्स में भी.
ना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी है, यानी कि बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कौन है, तो लीवर है। वेइंग बिटवीन द 1 to 2.3 kg, मीन्स ये लीवर भी एक ग्लैंड में आता है, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है एक्चुअली, ये ग्लैंड में आता है। It is a dark red in the color, situated in the upper right abdominal cavity below the diaphragm. The liver has a 4 lobes. इसके कितने lobes होते हैं? 4 lobes होते हैं. Two main lobes are right and left lobe, and other two are the quadrate and the quadrate lobe. Each lobe has many lobules. Lobule is the basic function of unit of the liver. A function of liver 2 marks में, 1 marks में बहुत पूछने का chances है. So see here, सिक्रेशन ऑफ बाइल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है लीवर का? लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। फिर सेकंड क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो सारे प्रोसेस वही होते हैं और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय डीएमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, यूरिया का भी फॉर्मेशन वही होता है। फिर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का भी फॉर्मेशन वही होता है, सिंथेसिस वही होता है। स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन, सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, natural anticoagulant, inactivation of the toxic substance and drug, production of heat as a result of the metabolic reaction. Now last 10th question is, name the hormone of the suprarenal gland and write its function. The adrenal gland has a 2 in number, one gland each is situated on the top each kidney. किडनी के ऊपर ये adrenal gland रहता है. इसके दो पार्ट होते हैं, इंटर एंड आउटर कॉर्टेक्स. द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है. जोना ग्लोमेरुला सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. जोना फैक्सिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट्स सेक्स स्टेरॉइड्स. अब यहाँ पे अलग अलग इसके फंक्शन दिया हुआ है कि मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है, ठीक है. तो दीज आर द एड्रेनोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन, और इन्फ्लुएंसेस द वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म में काम आता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है? तो these are the cortisol, cortisone and cortisosterones. The glucocorticoids influence the carbohydrate metabolism. Metabolism जो कार्बोहाइड्रेट का है वो पूरा पूरा डिपेंड होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे. It increases the synthesis of the glycogen, increases the breakdown of the protein into the amino acid, mobilization and distribution of the fat, and anti-inflammatory and anti-allergic effect. So these are the 10 क्वेश्चन विच आई हैव शोन टुडे. आज 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे. ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको एचपी के मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. अब तक ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इससे पहले भी मैंने सोशल फार्मेसी और सोटिक्स वगैरह पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, या फिर कुछ भी न्यू अपडेट आता है जो कि पीसीआई से हो या एग्जामिनिंग बोर्ड से हो, वो भी आपको रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे. इसके लिए आप चैनल से बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ आपको इसमें कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.